upon hearing the words of Dhruva Maharaj, became very compassionate toward him, and in order to show him his causeless mercy, he gave him the following expert advice. Perfect. Since the great sage Narad is a foremost spiritual master, naturally his only activity is to bestow the greatest benefit upon whomever he meets. Dhruv Maharaj, however, was a child, and so his demand was also that of a playful child. Still, the great sage became compassionate toward him, and for his welfare he spoke the following verses. नारद उवाच जनन्याभीतपन्था सवे निःश्रेयस्य सवे निःश्रेयस्य तते भगवान् वासुदेवस्तं भजं तं प्रवणापना. The great sage Narad told Dhruv Maharaj the instruction given by your mother Suniti to follow the path of devotional service to the Supreme Personality of Godhead is just suitable for you. You should therefore completely absorb yourself in the devotional service of the Lord. यहाँ क्लियरली शब्द का प्रयोग किया गया है. भगवान वासुदेवस्तम भजम तम. उनका भजन करो, रेंडर योर सर्विस भगवान वासुदेव के प्रति. Perfect. Dhruv Maharaj's demand was to achieve an abode even greater than Lord Brahma's. Within this universe, Lord Brahma is supposed to be in the most exalted position, for he is the chief of all demigods. But Dhruv Maharaj wanted a realm beyond his. उनको ब्रह्मा से भी बड़ा लोक चाहिए था. Therefore, his desire was not to be fulfilled by worshipping any demigod. As described in Bhagavad Gita, the benedictions offered by the demigods are all temporary. Therefore, Narad Muni asked Dhruv Maharaj to follow the path recommended by his mother to worship Krishna Vasudeva. When Krishna offers anything, it is beyond the expectation of the devotee. Both Suniti and Narad Muni knew that the demand of Dhruv Maharaj was impossible for any demigod to fulfill. And therefore, both of them recommended following the process of devotional service to Lord Krishna. ध्रुव महाराज जिस प्रकार का वर चाहते थे वो तो कोई देवता तो फुलफिल कर नहीं पाएगा. इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि सुनीति और नारद मुनि दोनों ही जानते थे कि ये केवल कृष्ण का भजन करने से ही प्राप्त होगा. इसलिए उन्होंने ध्रुव को कृष्ण के वर्शिप करने के लिए बोला. Narad Muni is referred to here as Bhagavan because he can bless any person just as the Supreme Personality of Godhead can. He was very pleased with Dhruv Maharaj and he could have at once personally given whatever he wanted. But that is not the duty of the spiritual master. His duty is to engage the disciple in proper devotional service as prescribed in the Shastras. ध्रुव महाराज खुद ही नारद मुनि खुद ही ध्रुव महाराज की इच्छा पूरी कर सकते थे, लेकिन जो गुरु का कर्तव्य है वह है शिष्य को शास्त्रों के अनुसार भगवान की भक्ति में लगाना. Krishna was similarly present before Arjuna, and even though he could have given him all facilities for victory over the opposing party without a fight, he did not do so. Instead, he asked Arjuna to fight. In the same way, Narad Muni asked Dhruv Maharaj to undergo devotional discipline in order to achieve the desired result. मीनिंग इसका क्लियर है, आपको पता है. तो नारद मुनि कह रहे हैं worship of the Lord's lotus feet, Hare Pada Sevanam, is the only method even for achieving the goals of Dharma, Artha, Kama and Moksha. Even जो चार पुरुषार्थ है भौतिक जगत के उसको भी प्राप्त करने के लिए श्री हरि
की कृपा चाहिए। उनकी श्रीहरि के चरण कमल की सेवा करने से ये चार पुरुषार्थ भी प्राप्त होते हैं। गो टू मधुवन ऑन द बैंक ऑफ द यमुना where the Lord resides eternally, that is Nityada, and become purified. शुचि, शुचि मीन्स जो श्लोक में जो शब्द का प्रयोग है शुचि, यानी कि बिकम प्योरिफाइड। मधुवन द्वादश महावन में से एक है, आप जानते हैं, हमारे ब्रज में ही है। यमुना के तट पर ही मधुवन में ध्रुव महाराज को सलाह दी नारद मुनि ने जाकर वहां भगवान श्री हरि का भजन करने के लिए। प्रैक्टिस अष्टांग योगा, टेक बाथ 3 times a day इन द ऑस्पिशियस शिवे, शिव यानी ऑस्पिशियस यमुना, वहां इंडिकेट किया गया है यमुना जो है उसके द्वारा यम और नियम दोनों, यम और नियम दोनों पालन करना है वहां। देन सिट ऑन योर आसन, डू प्राणायाम। ये जो है टेक बाथ 3 times a डे इन द ऑस्पिशियस यमुना, इसमें यम और नियम आ गया। हम्म। यम यानी कि प्रिस्क्रिप्शंस, नियम यानी प्रोस्क्रिप्शंस, डूज एंड डोंट्स। तो उससे रिलेटेड जो भी डूज एंड डोंट्स होते हैं वो अंडरस्टूड है, क्योंकि ध्रुव महाराज युग अलग था, इसलिए समझ गए कि ये वहां यमुना में दिन में 3 बार स्नान करना, 3 संध्या में स्नान करना, वो यम नियम में आ गया। और भी जो स्टैंडर्ड जो यम नियम जो होते हैं वो तो ऑलरेडी ध्रुव महाराज को पता है, इसलिए उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। देन सिट ऑन योर आसन, राइट, यम नियम आसन। डू प्राणायाम, 3 kinds ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रेचक, पूरक एंड कुंभक। तो शांतिपुर प्रभु को पता है ये, है ना, हम्म। पूरा जो प्राणायाम है वो इसी की एक्सरसाइज है, रेचक, पूरक और कुंभक की। रेचक यानी कि एक्सलेशन, पूरक यानी कि इनहेलेशन, और कुंभक यानी कि रिटेन करना ब्रेथ अंदर लंग्स में। तो प्राणायाम हो गया। ग्रेजुअली कंट्रोल द लाइफ एयर, ग्रेजुअली कंट्रोल द लाइफ एयर, माइंड एंड सेंसेस, ये हो गया प्रत्याहार। Thus, being free from material contamination, meditate on the Lord with an undisturbed mind. मनसा गुरुणा गुरुम, इसमें धारणा और ध्यान आ गया, राइट। तो भगवान के ऊपर ध्यान करना विथ अनडिस्टर्ब अनडिस्टर्ब माइंड, उसमें धारणा और ध्यान दोनों आ गए। तो ध्यान का जो विषय है, ध्यान का जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो धारणा है। तो या धारणा दे रहे हैं, क्योंकि जब तक वो बताएंगे नहीं कि किसके ऊपर ध्यान करना है, यानी कि धारणा जब तक बताएंगे नहीं तब तक ध्यान कैसे करेंगे। इसलिए यहां बताया है डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉर्ड्स फॉर्म फॉर मेडिटेशन, ये धारणा है। उसको, ये डिस्क्रिप्शन को वो धारण करेंगे अपने अंदर, और फिर उसके ऊपर ध्यान करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉर्ड्स फॉर्म फॉर मेडिटेशन, 45 to 51 में इसका वर्णन किया है 6 श्लोक में। प्रसादाभिमुखम शश्वत, ही इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू ऑफर कॉजलेस मर्सी। तो भगवान के ये रूप गुण इत्यादि के ऊपर ध्यान करना है, तो पहले उदाहरण ग्रहण करना पड़ेगा। प्रसन्न वदने क्षणम, हैज अ जॉयफुल फेस एंड ग्लांस। सुनासम सुभ्रुवम, हैज ब्यूटीफुल नोज एंड आईब्रोज। चारु कपोलम, हैज ब्यूटीफुल फोरहेड। सूर सुंदरम, is more beautiful than all the demigods. सूर सुंदरम। फिर तरुणम रमणीयांगम, is youthful and has attractive limbs. अरुणोस्ठेक सणाधरम,
His lips and eyes are like the rising sun. रेडिश है, इसका मतलब होता है रेडिश है। राइजिंग सन जो होता है वो रेडिश होता है। अरुणोदय है ना, अरुणोदय बोलते हैं ना, अरुण इसलिए यहां लिखा। अरुणोस्थे क्षणाधरम। अक्षणा, अक्षणा यानी कि आंख, अक्ष अक्षणा यानी कि आंख, धर्म यानी कि लिप्स, है ना। अरुणोस्थे यानी कि लाइक राइजिंग सन। अरुणोदय, क्योंकि अरुण जो है वो सूर्य की सारथी है, और अरुण का शरीर का रंग लाल है, इसलिए ऐसा बोला यहाँ। क्योंकि जो कृष्ण के जो होठ और आंखें जो हैं वो अरुण की तरह लाल है। प्रणताश्रयणम नृमणम। द शेल्टर, ही इज द शेल्टर ऑफ द सरेंडर्ड, ट्रांसेंडेंटली प्लीजिंग। इज द शेल्टर ऑफ द सरेंडर्ड, है ना। कृष्णा इज द शेल्टर ऑफ द सरेंडर्ड, एंड he is transcendently pleasing in all respects. Sharanyam Karunadavam, worthy of surrender and an ocean of mercy. Srivatsangam Ghanashyamam, bears Srivatsa mark on just blue in complexion. अपने छाती पर जो है वो लक्ष्मी देवी के चिन्ह के रूप में श्रीवत्स को धारण करते हैं। और उनके शरीर का जो रंग है क्या है, घनश्याम। एक सेकंड राहुल करिए। स्लो। हम्म। घनश्याम, ये शरीर का रंग जो है वो कैसा है, घनश्याम यानी रेन क्लाउड्स। रेन क्लाउड्स का जो कलर होता है वैसा। पुरुषम वन मालिनम, अ पर्सन एंड ही वेयर्स अ फ्लावर गार्लैंड। वन मालिनम। शंख चक्र गदा पद्मेर, विथ कॉन्च, डिस्क, क्लब एंड लोटस। ये पूरा उनके रूप और उनके गुण का वर्णन कर यहाँ नारद मुनि धारणा दे रहे हैं ध्रुव को। अभिव्यक्त चतुर्भुजम, हैज फोर आर्म्स। किरीटनम कुंडलिनम, wears jeweled crown and earrings. किरीट यानी क्राउन, राइट। अब वो क्राउन भी जो होता है कैसा होता है, ज्यूल होता है, उसमें बहुत सारे रत्न लगे होते हैं, रत्न जड़े होते हैं। और एंड कुंडलिनम, कुंडल धारण करते हैं, इयरिंग्स। केयूर वलयान्वितम, wears jeweled necklace and bracelets. कौस्तुभा ग्रीवम, कौस्तुभ jewel around his neck. पीता कौशेय वाससम, wears yellow silk clothes. कांची कलाप परियस्तम, waist is surrounded by a girdle of small bells. लसत कांचन नूपुरम, wears shining golden anklets. दर्शनीयतमम शांतम, most charming to look at and peaceful. मनोनयन वर्धनम, pleasing to the eyes and the mind. क्लियर है ये सब मीनिंग जो है, संस्कृत एकदम सिंपल है, तुरंत समझ में आ जाता है। पद्भ्याम नखमणि श्रेणिया,
विलसभ्याम स्मर विलस विलसभ्याम समर्चताम हृत पद्म कर्णिका दिष्ण्यम, यानी कि विद द ज्यूल लाइक नेल्स ऑफ हिज लोटस फीट glittering, he stands on the wall of the lotus of the hearts of those who worship them. पोइटिकली बहुत रिच है वर्णन, राइट, श्रीमद् भागवत है, राइट, तो इसमें बहुत पोएटिक ऑर्नामेंट्स हैं। आक्रम्यात्मनि अवस्थितम, सिचुएटेड इन द हार्ट एंड इंटेलिजेंस ऑफ द जीवा, तो उनका निवास स्थान कहाँ है? हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, जीवात्माओं के हृदय में है और जीवात्माओं की बुद्धि में है। स्मयमानम अभिध्यायेत, सानुरागा अवलोकनम, meditate on the Lord smiling who looks very mercifully toward devotee. नियते नैका भूतेना मनसा वरदर्शभम, meditate regularly with great attention on the greatest benedictor. तो इस प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान करो, क्या परिणाम मिलेगा? ये जो तुम ऐसे श्री हरि के ऊपर जो तुम ध्यान करोगे उससे क्या होगा? वन इज फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटेमिनेशन निवृत्त्या, सभी जो भौतिक कल्मश है उससे निवृत्ति प्राप्त कर लोगे, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या है? परया संपन्नम, एनरिच विद द हाईएस्ट ब्लिस। संपन्नम यानी एनरिच होना, अब परया मीन्स हाईएस्ट ब्लिस, ये दूसरा रिजल्ट होगा मेडिटेशन का। तीसरा रिजल्ट क्या होगा? यू विल नेवर बी डिविएटेड फ्रॉम इट। कौन से, किससे? जो परया संपन्नम जो बताया उससे कभी तुम डिविएट नहीं होगे, वो तुम्हें इटर्नल ब्लिस प्राप्त होगा, उससे कभी तुम डिविएट नहीं होगे। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मना निवृत्त्या परया तूर्णम संपन्नम न निवर्तते। मंत्र भी दिया, मंत्र जप एंड वर्शिप along with the meditation chant this highest secret द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे कान में दूंगा ये मंत्र, आई विल पुट इट इन योर राइट ईयर, दाहिने कान में, क्योंकि गुरु मंत्र ऐसे मिलता है, गुरु गुरु जो मंत्र देते हैं वो दाहिने कान में देते हैं। जो दीक्षा होती है, हमारी जो सेकंड इनिशिएशन जो होता है वो ऐसे ही होता है, दाहिने कान में गुरु मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र, 7 गायत्री मंत्र जो देते हैं वो। यू शुड वर्शिप द लॉर्ड्स फिजिकल फॉर्म विद दिस मंत्र and other various paraphernalia according to place, time, and prescribed methods. Now, why is a confidential mantra mentioned in the writing of Bhagavatam? ये तो confidential है ना, कान में बताने जाने वाला है, तो फिर भागवतम में सबको कैसे पब्लिक में बता दिया? One may receive a published mantra anywhere, but unless it is accepted through parampara, the mantra has no efficacy. हो सकता है कि मंत्र आपको कहीं लिखावट में कहीं मिल जाए, सुनने में आ जाए, पब्लिक के कोई कहीं से भी सुनने में आ गया आपको, या पढ़ लिया आपने कहीं, तो कोई व्यक्ति ऐसे जप करना शुरू कर सकता है, लेकिन जब तक वो गुरु के द्वारा परंपरा में प्राप्त नहीं होता वो अपना डिजायर्ड एफिकेसी नहीं देगा, इनफैक्ट वो काम ही नहीं करेगा। और कई केस में वो बहुत अल्टीरियर मोटिव के लिए वो व्यक्ति वो जप करेगा तो उसको अपराध भी लगेगा, उसका उल्टा परिणाम भी आ सकता है। इसलिए कई बार हम लोग बताते हैं कि बोले ये जो गोपाल तापनी उपनिषद है उसमें तो गोपाल मंत्र दिया, बोले कोई भी उसमें से पढ़ के जप करना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको परंपरा में प्राप्त करना होता है, तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हाउ टू ध्रुव हु वाज नॉट अ ब्राह्मण प्रोनाउंस प्रणव ओमकार? तो ये भी प्रश्न हो सकता है कि लोग क्षत्रिय थे तो फिर प्रणव ओमकार
का वो कैसे उच्चारण कर पाए, वो तो ब्राह्मण को अधिकार है। सो ही डिड सो ऑन द ऑथोरिटी ऑफ नारद मुनि, क्योंकि ध्रुव महाराज में भगवान को प्राप्त करने की का दृढ़ निश्चय था, है ना। ठीक है, उनका भौतिक इंटेंशन है, बट दैट डजंट दैट डजंट डिस्क्वालिफाई समवन टू रिसीव एनी काइंड ऑफ इनिशिएशन। तो ऑलरेडी नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा कर चुके हैं, और नारद मुनि समझ गए कि ये ही इज डिटरमिन्ड, so that means he is qualified for the initiation, and as a part of initiation he was given pranavkar also, pranav omkar also, om namo bhagavate vasudevaya, right, because that is the mantra. So the whole mantra has to be given, because it is a part of the mantra, uh, mainly based on the holy names, right. You cannot separate om from that, उसको अलग नहीं कर सकते। And he had already proven his eligibility of receiving such mantra in initiation. So he is definitely qualified to receive Omkar also, though he is not a Brahmana, because he has qualifications, right? तो मंत्र दीक्षा जो होती है इसमें क्वालिफिकेशन ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। कौन से वर्ण में जन्म लिया है, कौन से कुल में जन्म लिया, वो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होता है। इंग्रेडिएंट्स: worship the Lord by offering pure water, garlands, fruits, flowers, vegetables, etc., etc., and tulsi leaves which are very dear to him. Tulasya priyaya prabhum. तो प्रक्रिया बता रहे कैसे उनको वर्शिप करना है, क्योंकि मंत्र के ऊपर मंत्र जब तो करेंगे, लेकिन वो विग्रह को वर्शिप करने के लिए भी बोल रहे हैं। दस वर्शिप द वर्शिप द लॉर्ड्स फ्रॉम फॉर्म वर्शिप द लॉर्ड्स फॉर्म मेड ऑफ अर्थ एंड वाटर, द्रव्यमयीम अर्चाम इन द फॉरेस्ट, क्योंकि वहां तो मिट्टी मिलेगी, मिट्टी और पानी मिलेगा, और तो कुछ मिलेगा नहीं वहां, राइट। पत्थर वगैरह होगा तो कहाँ वो कार्विंग करके बनाने वाले हैं, वो चीजल वगैरह का उपयोग करके, वो नहीं। सिंपल है कि जो मिट्टी जो मिलती है वन में, जो मिट्टी है और पानी का उपयोग करके उनका रूप बनाओ और वर्शिप करो। वहां जल मिल जाएगा, वन में पुष्प मिल जाएंगे तो उसकी माला बना लो, है ना। फल भी प्राप्त हो जाएंगे, सब्जियां प्राप्त हो जाएगी, तुलसी पत्र प्राप्त हो जाएंगे वन में, तो उनके द्वारा भगवान को वर्शिप करो। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं नारद मुनि, ध्रुव महाराज को पूरी प्रक्रिया सिखा रहे हैं और दूसरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अभृत आत्मा यतवाक, कंट्रोल योर माइंड एंड स्पीच। आवृत आत्मा यतवाक, मन और वाणी को नियंत्रित करो। बी पीसफुल, शांत। और मीत वन्य भुक, बी सेटिस्फाइड विद ईटिंग वॉट एवर इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। इधर उधर नगर में और गांव में जाकर भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, जो वन में मिल गया, फलादि फल, कंद मूल, वो खा लो। Meditate on the Lord's transcendental activities in his various incarnations. तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, उन अवतारों की में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की हैं, उनके ऊपर ध्यान करो। Follow the footsteps of previous devotees to worship the Lord. पूर्व सेविता, जैसे पहले महाजनों ये न कृत सपंता, पहले पहले के जो भक्तों ने जिस प्रकार से भगवान को अर्चन किया था, उसी प्रकार से तुम भी करो। Chant the मूल मंत्र and mentally offer, that is मंत्र हृदयेन, items that are unavailable, जो आइटम्स नहीं मिल रही है उनको मेंटली ऑफर करो, मंत्र का मामूल मंत्र का जप करके। टू टू ही हु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द मंत्र, मंत्र मूर्त ये, है ना। तो भगवान जो है अपने मंत्र से अभिन्न है,
अभी यहाँ मूल मंत्र वगैरह को मेंशन नहीं किया है ना, वो हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सिखा दिया। और जो द्रव्य वहां वन में उपलब्ध नहीं हो रहे, उनको मेंटली ऑफर करने के लिए बोला, मूल मंत्र का जप करते हुए। और वो जो श्रीहरि जो है वो अपने मंत्र से अभिन्न है, इसलिए उनको मंत्र मूर्ति कहा गया है। What will be the result of worship? When one thus engages in devotional service seriously and sincerely, amiya, amiyani, amayinam, sincerely and seriously, with his mind, words, and body, according to the regulated principles, bhakti mat, the Lord who increases the ecstasy of his devotee, that is bhav vardhanaha, blesses him according to his desires. तो इस प्रकार से नारद मुनि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की पूजा करता है, सिंसियरली सीरियसली, अपने मनसा वाचा गिरा, विधि निषेध का पालन करते हुए, तो भगवान जो है उसकी इच्छा पूरी करते हैं। और ये भगवान का यहाँ क्या गुण बताया है? भाव वर्धना, यानी कि अपने भक्तों की एक्सटेसी को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, कई बार मैंने देखा है, भक्त जो है कई बार मुझे अप्रोच करते हैं, थोड़ा सा इसके विषय में बोलना चाहूंगा। कई बार कुछ डिवोटी, उनके कुछ मटेरियल एम्बिशंस होती हैं, कुछ भौतिक इच्छाएं होती हैं, और शास्त्रों में बताए गए फिर रिसाइटेशंस वगैरह करते हैं या कुछ अनुष्ठान करते हैं। बोले प्रभु, नहीं मिल रहा है, बहुत किया, नहीं मिल रहा है। सब लोगों को ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों को मिलता भी है, लेकिन ज्यादातर केस में डिवोटी लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं, प्रभु कुछ मिल नहीं रहा है, शास्त्र में जैसे बताया वैसे मिल नहीं रहा है, मैंने तो इतना डिसाइड किया और उसमें फलश्रुति दी है, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम भगवान को फोर्स नहीं कर सकते। आप अपने अनुष्ठान से, अपने व्रत से, बिकॉज ही इज नॉट सम डेमीगॉड who will be who will be forced to give you the result of the fruit of your अनुष्ठान और व्रत। देवता बद्ध हो, बाध्य है, भगवान बाध्य नहीं है। कृष्णा इज स्वराट, इज इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले तो यहाँ कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो जो आप ध्यान में रखिएगा, और जो भी आपके आसपास में कोई डिवोटीज, आपके फ्रेंड्स इस प्रकार की कंप्लेंट करते हो, आपको सुनाई दे रहे हैं, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं ये बात, इफ यू वांट। कि सबसे पहले तो कृष्ण जो है वो स्वतंत्र है। हम अनुष्ठान करें तो उसका फल देने के लिए तुरंत, जब आपकी इच्छा हो उस समय वो उसका फल देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वो कर्म के नियम से परे हैं। अनलाइक डेमीगॉड्स, डेमीगॉड्स जो होते हैं उनको तो, जो वेदों में जिस प्रकार से विधि बताई आप उस प्रकार से करोगे, दे आर बाउंड टू गिव यू। बट कृष्ण इज नॉट बाउंड, ही इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू डू, टू गिव यू वॉट एवर यू आस्क। हैविंग सेड दैट, वन हैज टू बी पेशेंट। जरूरी नहीं कि आपको जो आपकी अभी इच्छा है, वो आप जिसके वो इच्छा पूर्ति के लिए आप कुछ कर रहे हैं, कुछ व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ रिसाइटेशन कर रहे हैं, पाठ वगैरह कर रहे हैं, आपको उसी जन्म में ही वो मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। क्योंकि शास्त्र में ऐसा नहीं बताया है कि पुराण इतिहास में जो रिसाइटेशन वगैरह का फलश्रुति जो दिए हैं, उसमें ऐसा नहीं बताया कि आपको उसी जन्म में मिल जाएगा, ऐसा टाइमलाइन नहीं दिया है। यू माइट गेट दैट इन नेक्स्ट बर्थ। और वो चीज जो मेरे हित में नहीं है, वो भगवान मुझे उस समय नहीं देंगे।
डेफिनेटली नहीं देंगे। आप कितना भी कर लो। ही हैज हिज ओन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। ये सभी को समझना पड़ेगा ये। कृष्णा हैज हिज ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन द सेंस यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ पेशेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनमें कंप्लीट फेथ होनी चाहिए कि यदि मुझे ये चीज अभी मेरी इच्छा है लेकिन मुझे नहीं मिल रही है, भगवान नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स इस समय ये मेरे हित में नहीं है। दैट्स व्हाई ही इज नॉट गिविंग मी। जब उसका समय आएगा तो वो मिलेगा। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनामियो विदिताति काम। जब हम डिवोटी नहीं थे तब भी वो इच्छा पूरी कर रहे थे, अभी क्यों नहीं करेंगे? है ना? इतने सारे असुर बैठे दुनिया में, ब्रह्मांड में इतने सारे असुर हैं, पापी लोग हैं, उनकी भी इच्छा भगवान पूरी कर रहे हैं समय आने पर। व्हेन टाइम कम्स, तो भक्त की इच्छा पूरी क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। बट वन हैज टू बी पेशेंट। इसलिए कई केस में ये एडवाइजेबल होता है कि अपनी इच्छा को भूल जाओ। जस्ट कंटिन्यू विथ योर भजन। डोंट कीप प्रेइंग, डोंट कीप बॉदरिंग हिम। अरे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अरे भाई ठीक है, ही नोज। You have made it abundantly clear to him that you want this. He knows. Even if you don't tell him, he knows. आप नहीं भी बताओगे तो भी उनको पता है ना, क्योंकि सबके हृदय में रहते हो। सो वाई अननेसेसरी अननेसेसरी गिव योर ट्रबल टू योर सेल्फ एंड हिम, टू हिम ऑल्सो। जस्ट डू योर भजन। अपना भजन करो, अपना कर्तव्य का निर्वाह करो। जब समय, और उसके ऊपर मेडिटेट करना बंद कर दो। जो भी अभिष्ट है, जो मुझे चाहिए, जो मेरी डिजायर है, जस्ट गिव इट अ ब्रेक। भजन में मन लगाओ अपना। है ना? और वैसे भी जो भागवतम में जो बताया है, क्या तरीका बताया, अकाम सर्वकाम व मोक्ष काम उदार उदार तीव्रण भक्ति योग ने यजनम पुरुषम परम। अभिष्ट की प्राप्ति के लिए वैसे भी भजन बहुत तीव्र करना पड़ता है। आई मीन हर केस में। यदि कोई भौतिक इच्छा है या नहीं है, या मोक्ष की इच्छा है, भगवतधाम जाना चाहता है, या कुछ और प्रकार की इच्छा है, जो भी है, क्या बताया? तीव्रण भक्ति योग है ना। यहाँ देखेंगे ध्रुव महाराज कितना तीव्र भजन करते हैं। आप वर्णन पढ़ेंगे आगे, सुनेंगे हम। तो उस प्रकार की, हाँ, कई बार हम जो करते हैं हमारे भजन में तीव्रता भी नहीं है, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी इच्छा इससे पूरी हो जाएगी। अब पहले भजन तो तीव्र करो। जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो। है ना? तीव्रण भक्ति योगिना यजनम पुरुषम परम। तीव्र भजन 64 माला करो, समथिंग लाइक दैट। कुछ नाम का, कुछ नाम जप यज्ञ जैसा कुछ तीव्र करो। तो हम लोग कुछ तो आशा रख सकते हैं, चलो भगवान इच्छा पूरी कर सकते हैं। अभी तो ढंग का भजन भी नहीं हो रहा। अब बोले ये दो, वो दो, ये दो, ये दो, तो कितना क्या डिमांड करना है? तो ऑलरेडी अनादिकाल से हम लोग डिमांड करते आ रहे हैं हम लोग। और डिमांड नहीं किया है तो भी भगवान फुलफिल कर रहे हैं हमारी नीड्स तो। ठीक है, तो ये जरा कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। To achieve special liberation, विमुक्तये, one must be aloof from sense enjoyment, विरक्तस चेन्द्रिय रतो। है ना? लिबरेशन के लिए तो भौतिक इच्छाओं को भूल ही जाना पड़ेगा। एंड परफॉर्म भक्ति विद भाव विदाउट सेजेशन, निरंतर। निरंतर। आ हेतु की अप्रतिहता। यहाँ निरंतर यानी अप्रतिहता समझ लीजिए। किसी भी कंडीशन में वो भक्ति रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। तो नारद मुनि ने शिक्षा दे दी ध्रुव महाराज को। अभी ध्रुव गोज टू मधुवर। ध्रुव देन सर्कमएम्बुलेटेड नारद,
उनकी प्रदक्षिणा की, offered obeisances, and went to Madhuban, which is always imprinted with the lotus footprints of Krishna. Haris Charana Charch. Haris Charana Charchitam. 63 से 70 में नारद वर्णन किया है, नारद मीट्स उत्तानपाद एंड पेसिफाइज हिम. After Dhruva left, Narad went to meet King Uttanpad. After being welcomed properly, Narad spoke as follows. Why morose? O king, your face is withered. है ना, उनका चेहरा उतर गया था, रूखा सूखा हो गया था राजा का, क्योंकि वो ध्रुव को प्रेम करते थे और वो उनको जस्टिस नहीं कर पाए. और अभी ध्रुव तो चले गए वन में. हैव यू बीन थिंकिंग ऑफ समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? नारद मुनि उत्तानपाद को कह रहे हैं. हैव यू बीन हैम्पर्ड इन हैव यू बीन हैम्पर्ड इन फॉलोइंग धर्म अर्थ एंड काम? क्या कारण से तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? क्या तुम धर्म अर्थ काम को फॉलो नहीं कर पाए? उसमें कुछ व्यवधान आया है, या किसी चीज के बारे में लंबे लंबे समय से सोच रहे हो तुम? नारद डिड नॉट इंक्वायर अबाउट मोक्षा, but only regarding the state management, which is meant for the advancement of dharma, arth and kama. मोक्ष के बारे में नहीं बोला उत्तानपाद को, कि क्या तुम मोक्ष के प्रयत्न में व्यवधान तुम्हें प्राप्त हुआ है कुछ, उसके ऐसे में नहीं पूछा. वो मेनली जो स्टेट मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है, धर्म अर्थ काम, उसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया. जनरली पीपल एंगेज इन सच अफेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मोक्ष. है ना, मुमुक्षु बहुत रेयर होते हैं, दुर्लभ होते हैं इस दुनिया में. उत्तानपाद ने जवाब दिया. क्या हो रहा है? इट्स नॉट मूविंग एट ऑल. हैंग हो गया क्या? हाँ. राज राजवाच. सूतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रेणेना करुणात्मना निर्वासित पंचवर्ष सह मात्रा महान कविः. The king replied, O best of the Brahmanas, I am very much addicted to my wife, and I am so fallen that I have abandoned all merciful behavior, even to my son, who is only 5 years old. I have banished him and his mother, even though he is a great soul and a great devotee. यहाँ किसकी बात करें? मदर मतलब सुनीति की बात कर रहा है, कि सुनीति और उसके बेटे को मैंने त्याग दिया, मतलब उसके साथ में न्याय नहीं कर पाया. Perfect. In this verse, there are some specific words which are to be understood very carefully. The king said that since he was very much addicted to his wife, he had lost all his mercy. बहुत ज्यादा सुरुचि से आसक्त थे, है ना, एडिक्शन हो गया था, उनके बिना वो रह नहीं पाते थे. उसकी वजह से he had lost all his mercy. That is the result of becoming too affectionate toward women. The king had two wives. The first wife was Suniti and the second was Suruchi. He was so attached to the second wife, however, so he could not behave well with Dhruv Maharaj. That was the cause of Dhruva's leaving home to perform austerities. वो तो घटना क्या घटी आपने सुना है पहले, right? Although as a father, the king was affectionate toward his son, he minimized his affectionate for Dhruv Maharaj because he was too much addicted to the second wife. Now he was repenting that both Dhruv Maharaj and his mother Suniti were practically banished. उनको कोई जस्टिस नहीं दे पाते थे, जैसे उनको बैनिश कर दिया, परित्याग कर दिया, ऐसे ही लग रहा था, निष्कासित कर दिया ऐसा लग रहा था.
Dhruv Maharaj went to the forest, and since his mother was being neglected by the king, she was therefore almost banished also. वो राज्य में रहने के बावजूद भी राजा को ध्यान नहीं दे पाते थे उसकी तरफ. द किंग रिपेंटेड हैविंग बैनिश्ड दिस हिज बॉय. जरा सोचिए, उत्तानपाद, हम तो ये स्टोरी के रूप में सिर्फ पढ़ रहे हैं ऐसा, लेकिन आप एक्चुअली सोचिए कि उत्तानपाद को उस समय कितना रिमोर्स फील हो रहा होगा. उनका छोटा सा लड़का है ना, 5 साल का लड़का जो है, और ऐसा तो था नहीं कि उत्तानपाद उसको प्रेम नहीं करते थे. वो तो सुरुचि की वजह से अपना प्रेम दिखा नहीं पाते थे. तो राजा को बहुत दुख हुआ. जरा सोचिए, हम प्रैक्टिकली जैसे होता है मेरे घर में कि जैसे मेरा लड़का मेरे इल ट्रीटमेंट की वजह से, या मैं उसके साथ न्याय नहीं किया, मेरा 5 साल का लड़का, छोटा सा 5 साल का लड़का घने जंगल में चला गया, जंगल में. इमेजिन करिए. ठीक है, मधुवन है, लेकिन है तो वन, है ना, है तो जंगल ना. तो वहां तो कांटेले, जो कंटीले मार्ग पे चलना पड़ेगा वहां. और ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे रथ वगैरह सब बहुत सारी चीजें लेकर गए साथ में, वो तो ऐसे चल दिए, है ना. वो तो कुछ प्रिविलेज तो मिलने वाला था नहीं, क्योंकि वो तो सुनीति को पसंद नहीं था. राइट. अकेला ऐसे ही चला गया वो तो. और वहां तो बहुत हिंसक पशु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, क्या क्या चीजें वहां, ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता. छोटा सा 5 साल का लड़का. तो जरा सोचिए बाप के ऊपर क्या बीतती होगी. जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन लाइक दैट. एक्चुअली जब होता है, और ये एक्चुअली हुआ है, लेकिन हम उसको कई बार हम लोग ठीक से पिक्चर नहीं कर पाते, ठीक से उसको समझ नहीं पाते हैं. आप अभी की सिचुएशन आपने अपने साथ आप अनुभव करके देख लीजिए, इमेजिन करके देख लीजिए, है ना. तो राजा को बहुत दुख हुआ इसके लिए. द किंग रिपेंटेड हैविंग बैनिस्ड हिज बॉय, और वो भी मेरे खुद के व्यवहार की वजह से, दुर्व्यवहार की वजह से चला गया. तो कितना बाप को कितना दुख दुख होगा इसकी वजह से. फॉर ध्रुव वॉज ओनली 5 years old, and a father should not banish his wife and children or neglect their maintenance. Repentant over his neglect of both Suniti and her son, he was morose, and his face appeared withered. According to Manusmriti, one should never desert his wife and children. है ना. क्यों बीवी बच्चों को ऐसे त्याग नहीं करना चाहिए. संन्यास ले रहे वो बात अलग है, लेकिन गृहस्थाश्रम में आप हैं तो बीवी बच्चों को छोड़ना नहीं चाहिए. उनको उनकी जो मेंटेनेंस उनको ठीक से करना चाहिए, और उनको अवहेलना नहीं करनी चाहिए, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. In a case where the wife and children are disobedient and do not follow the principles of home life, they are sometimes given up. वो परिस्थिति अलग है. But in the case of Dhruv Maharaj, this was not applicable because Dhruva was very mannerly and obedient. ऐसा तो थे नहीं कि ध्रुव जो थे वो तो बालक था एक तो पहले, और वो तो अच्छा बिहेवियर थे और ओबीडियंट थे, तो उनको त्यागने का कोई कारण नहीं था. इसलिए उत्तानपाद को बहुत दुख हो रहा है. Moreover, he was a great devotee. Such a person is never to be neglected. Yet the king was obliged to banish him. Now he was very sorry. तो फिर 65 था ना, 66. Unprotected son. My son is unprotected. Anatham in the forest. He might be tired. जो वो इमेजिन कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी. He might be tired, hungry, lying down all alone. Just imagine, अकेला, lying down, and the wolves might have attacked him. Cruel. I was conquered by my wife. Srijitasya. See my cruelty. Dauratmyam. Most vile. Asattamaha. Look at me. कैसा मैं कितना क्रूर हूं, कितना क्रूर हूं. I did not welcome my son when he tried to climb on my lap. Narad informs about Dhruva's safety and future success. नारद मुनि क्या कह रहे हैं तानपाद को.
डू नॉट बी अग्रीव्ड अबाउट योर सन। सबसे पहले तो ही इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड, देवगुप्तम। श्लोक में शब्द का प्रयोग किया है देवगुप्तम, यानी कि ही इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड। नंबर टू, दो हिज ग्रेटनेस इज येट अननोन, हिज फेम विल सून स्प्रेड थ्रू आउट द यूनिवर्स। अभी तो लोगों को उनके उसकी महानता को पता नहीं चला है उनकी, लेकिन बहुत जल्दी उनका यश पूरे ब्रह्मांड में फैलने वाला है। प्रावृंते यद दशो जगत, यद यशो जगत। योर सन इज वेरी कॉम्पिटेंट आफ्टर परफॉर्मिंग टास्क डिफिकल्ट इवन फॉर द डेमिगॉड्स, सुदुष्करम कर्म कृत्वा ही विल सून रिटर्न होम एंड विल स्प्रेड योर रेपुटेशन। आपका जो पुत्र जो है वो सक्षम है और बड़ी कठिन तपस्या करके, देवताओं के लिए भी मुश्किल है, सुदुष्करम कर्म कृत्वा। सुदुष्करम, वो एक ऐसा कर्म करने वाले हैं, एक ऐसा अनुष्ठान करने वाले हैं कि जो देवताओं के लिए भी सुदुष्कर है। और जब वो उसके बाद वो घर लौटेंगे और आपका यश पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे। सो व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन लाइफ इज टू सेटिस्फाई द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। बहुत डिफिकल्ट है भगवान को संतुष्ट करना, इतना इजी नहीं है, क्योंकि मनुष्य को अपने सभी भौतिक आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा और वो बड़ा कठिन है। अपने मिथ्या अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। बड़े बड़े सूरमा फेल हो जाते हैं उसमें तो, है ना। इसलिए श्री कृष्ण को प्रसन्न करना इतना सरल नहीं है। एंड ध्रुव महाराज वॉज गोइंग टू डू दैट विथ हिज डिटर्मिनेशन। After hearing from Narad, Uttanpad gave up interest in his wealthy kingdom and simply began to think of his son. उनको कोई अपने राज्य में रुचि नहीं रही, उत्तानपाद को अपने पुत्र के बारे में सोचने लगे। फिर आगे कुछ 7 श्लोक में ध्रुव महाराज की तीव्र तपस्या के बारे में वर्णन हुआ है। At Madhuban, Dhruva took his bath in the Yamuna and observed fasting that night. Then he worshipped the Lord as instructed by Narad Muni. तो नारद मुनि जाने के बाद यमुना में स्नान किए और उन्होंने फास्टिंग किया दैट नाइट, उस रात को जब वो नारद मुनि उनको शिक्षा देकर गए। फिर उन्होंने श्री हरि की आराधना की जैसे नारद मुनि ने शिक्षा दी थी। 4 महीना। अब वो अभी उन्होंने तपस्या, उनकी तपस्या का वर्णन हुआ है। तो पहले मंथ में ध्रुव सस्टेन ऑन व्हाट, कपित्थ फ्रूट्स एंड बेरीज। जो वहां जो वन में जो अलग अलग प्रकार के फल और बेर होते हैं वही खाया। कपित्थ फल मुझे नहीं पता क्या होता है, प्रभुपाद ने यदि परपट में लिखा है तो अब देख लीजिएगा। कैसे खाया उन्होंने, वंस इन 3 डेज, 3 दिन में एक बार, बस। डेली नहीं खाते थे, डेली भोजन नहीं करते थे। तो पूरा 1 महीना, फर्स्ट मंथ उन्होंने ऐसी तपस्या की। 3 दिन में एक बार ये फ्रूट्स और बेर खाते थे। फिर दूसरे महीने में ड्राई ग्रास एंड लीव्स ही एट। ठीक है, तो वहां ऑब्वियसली उस ऐसा कुछ प्रकार का घास होगा, सूखा घास जो मनुष्य भी खा सकते हैं, और कुछ पत्ते ऐसा, वंस इन 6 डेज खाते थे। प्रश्न लास्ट में लेते हैं रजत प्रभु, विल टेक क्वेश्चंस एट द एंड। फिर तीसरे महीने में वंस इन 9 डेज पानी पिया, बस 9 दिन में एक बार ही पानी पीते थे। और चौथे महीने में 12 दिन में एक बार हवा, ऑक्सीजन यानी कि प्राणायाम वगैरह जो कर रहे थे, कुंभक योग जो भी योग करते थे उसमें एयर भी नहीं लेते थे, वो भी 12 दिन में एक बार केवल। तो चौथा महीना इस प्रकार से तपस्या की। बाय द फिफ्थ मंथ ध्रुवा कंट्रोल हिज ब्रेथ एंड माइंड, stood motionless on one foot like a pillar, and meditated on the Lord's form without diversion. और 5वें महीने तक तो पूरा उनका कंट्रोल आ गया था
अपने सांस के ऊपर, मन के ऊपर, और एकदम स्थिर होकर एक पैर पर खड़े रहे, पिलर की तरह, और भगवान के रूप के ऊपर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना विदाउट किसी डिवर्जन उन्होंने ध्यान किया। क्या परिणाम है इसका? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ध्रुव's मेडिटेशन? द थ्री वर्ल्ड्स ट्रेम्बल्ड व्हेन ध्रुव thus captured the lord, है ना? तो फिर क्या हो गया कि पांचवें महीने में उन्होंने ऐसा ध्यान किया कि भगवान को ही अपने हृदय में उन्होंने जकड़ लिया। ऑफकोर्स हृदय हृदय में भगवान होते ही हैं, लेकिन वो प्रकट हो गए उनके सामने। When Dhruva thus captured the Lord, the refuge of the total material creation, Adharam Mahad Adinam Adinam, and the master of all living entities, Pradhana Purusheshwaram, the three worlds began to tremble. तो इतना जबरदस्त ध्यान किया भगवान के ऊपर कि पूरा ब्रह्मांड कंपित होने लगा। As Dhruva kept himself steadily standing on one leg, the pressure of his big toe pushed down half the earth. पृथ्वी गर्भोदक सागर में धंसने लगी उनके तपस्या के बल से। अभी तपस्या कौन सी है? वो भगवान के ऊपर ध्यान कर रहा है ना, तो भगवान का ही बल, भगवान का ही वेट उनके अंदर आ रहा है, इसलिए पृथ्वी धसी जा रही है। Everyone suffocated when Dhruva became practically one in heaviness with Lord Vishnu। बताया ना, देखो सेम चीज बताइए अभी। When Dhruva became practically one in heaviness with Lord Vishnu due to his full concentration and closing all the holes of his body, उन्होंने अपने शरीर के नौ द्वार बंद कर दिए। The demigods and residents of all planets felt suffocated and took shelter of the Lord। पूरे ब्रह्मांड को इस प्रकार से उन्होंने अपने शरीर के जो द्वार हैं उसको ही बंद कर दिया। इसकी वजह से देवता लोग भी सांस नहीं ले पा रहे थे। The residents of all the planets felt suffocated and took shelter of the Lord। How could Dhruva become so heavy and push down the earth and suffocate the universal inhabitants? Although hundreds of people sitting in an airplane remain individual units, they each share in the total force of the airplane, है ना? तो ये एरोडायनेमिक्स के एंगल से थोड़ा बताया यहाँ कि जो प्लेन जो जिस गति से जा रहा है, टोटल फोर्स जो है, तो उसमें उसमें रहने वाला हर एक व्यक्ति उसको शेयर कर रहा है, राइट? दे ईच शेयर इन द टोटल फोर्स ऑफ द एयरप्लेन। Similarly, Dhruva, because of his concentration on the Lord, became almost the total heaviness and could push down the earth। Moreover, by such spiritual power, his unit body became the total body of the universe। जो उनका जो खुद का शरीर था उसी में पूरे ब्रह्मांड का वेट आ गया। Thus, when he closed the holes of his unit body to firmly concentrate his mind on the Lord, all the units of the universe, that is, the living entities, including demigods, felt suffocated। क्योंकि उनका जो स्पिरिचुअल पावर की वजह से उनका जो इंडिविजुअल बॉडी था वो खुद ही ब्रह्मांड, टोटल ब्रह्मांड का शरीर बन गया। यानी कि पूरा ब्रह्मांड का ही उनके शरीर में आ गया, ऐसा समझ लीजिए, राइट? उसकी वजह से सभी लोग सफोकेट हो रहे थे। तो भगवान ने देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, डियर लॉर्ड, वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड सच सफोकेशन प्राण रोधम। यू आर द रेफ्यूज ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, चराचर स्याखिल सत्वधामना, and are worthy of taking shelter शरण्यम। Therefore we have approached you, kindly save us from this danger। तो हम आपकी शरण में आए हैं, हमें बचाइए। तो भगवान ने देवताओं से क्या कहा? डू नॉट बी पर्टर्ब्ड, परेशान मत हो। इट इज ड्यू टू द सिवियर ऑस्टेरिटीज ऑफ ध्रुव हु इज नाउ फुल्ली अब्सॉर्ब्ड इन थॉट ऑफ मी। संगत आत्मा जो अभी मेरे ध्यान में मग्न है, उसकी वजह से हो रहा है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तीव्र तपस्या करते हुए मेरे ध्यान में डूबे हुए हैं ध्रुव, ध्रुव महाराज।
I shall stop him, and thereby all of you will be saved. Please return. भगवान उनको अश्योरेंस दिया कि मैं उनको रोकूंगा, ये तपस्या करने से आप अपने अपने लोक को पुनः लौट जाइए। तो यहाँ ये अध्याय समाप्त हुआ, 8वां अध्याय। Thus end Bhaktivedanta purpose of the fourth canto, eighth chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Dhruv Maharaj leaves home for the forest. ठीक है, रजत जी क्या पूछ रहे थे आप? रजत जी आपका आवाज साफ नहीं है शायद। जी कपिता का मीनिंग वुड एप्पल गूगल में सर्च किया आप था। क्या बोल रहे हैं? जी जो कपिता का मीनिंग वुड एप्पल गूगल में सर्च किया था, टेक्स्ट बॉक्स में डाला है। जो फर्स्ट डे में उन्होंने क्या कहा था ना, कपिता कपिता, वो जो फ्रूट जो वुड एप्पल, वो वुड एप्पल। अच्छा, एप्पल होता है, ठीक है। एंड बाबू जी इसका जो 79 में पुश डाउन हाफ द अर्थ का मतलब ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। 79 नंबर है ना, इन्होंने एक ब्रिक टो से पुश डाउन हाफ द अर्थ का मतलब क्या हुआ 79 टेक्स्ट में? हाफ 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 ये जी बोलिए। इसमें उनका जो बताया ना कि पूरे ब्रह्मांड का ही वजन उनके अंदर आ रहा है, तो जो एक पैर पे खड़े रहकर जो तपस्या कर रहे थे, तो ब्रह्मांड का ही वेट उनके शरीर में आ रहा था। उसकी वजह से आधी पृथ्वी डूब गई, धस गई, किसमें? गर्भोदक सागर में। पूरी नहीं, आधी, वो बताया यहाँ। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें जो नारद मुनि ने जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी, तो ध्यान करने की दी थी और साथ में वर्शिप करने की भी दिया था। तो कहीं वर्शिप करने का भी कोई प्रकरण आता है क्या किसी जगह पर? भागवत में जैसे भी नहीं आया। हाउ डिड ही वर्शिप? आई मीन ही डिड ही मेक ए विग्रह एंड देन वर्शिप हिम एंड ऑल दिस? ऑफ कोर्स ही डिड, ऑफ कोर्स ही डिड। वो अच्छा। तो इसमें अंडरस्टूड है, इट इज इम्प्लाइड दैट नारद ने बताया ना, इसमें लिखा तो है नहीं कि उन्होंने उन्होंने इस प्रकार से वर्शिप किया। तो पहली वर्शिप रात में करने, वर्शिप किया ना, और वहां से मतलब वर्शिप शुरू कर दी उन्होंने। नहीं जब वो ध्यान में अगर मान लो करने रह रहे हैं तो वर्शिप कैसे हो रही है फिर? मतलब जस्ट आई वांट टू नो दिस। वो उसके लिए हमें थोड़ा आचार्य की कमेंट्री देखनी पड़ेगी, हाँ क्योंकि नारद मुनि ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया हाँ कि हाँ मिट्टी से मिट्टी से विग्रह बनाओ, हाँ करेक्ट। और वन में जो पुष्प इत्यादि मिल रहे हैं उनसे वर्शिप करो, हाँ तुलसी पत्र वगैरह मिल रहा है तो वर्शिप। इसमें क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो दिन के कुछ पार्ट में वर्शिप भी करते हो, सबसे पहले संध्या के समय, और अच्छा। उसके बाद ध्यान में जाते हो। हाँ हाँ हाँ। जरूरी नहीं कि वो 24 घंटा ध्यान में है, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके ओके। क्योंकि नारद मुनि ने ये भी तो इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये भी करना है, ये भी तो ध्यान है, वर्शिप है। यस। तो आ, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तित कौर्य कि आर ना कौर्य होने आशा। हम्म। तो जो भी नारद मुनि ने उनको शिक्षा दी, वो वर्बेटिम उनको उन्होंने फॉलो किया, तभी तो भगवान प्रसन्न हुए। यस। सो इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्शिप, जो वर्शिप होता है, और अष्टांग योग। दोनों का दे दोनों। डेटी वर्शिप और अष्टांग योग का कॉम्बिनेशन था ये। ठीक है। Nowadays we are advised only for deity worship because we are not eligible for So doing Ashtanga. nowadays we are mainly advised for holy names, chanting the holy names, Yes, holy names. Yes, and correct. deity worship is secondary. Yes, because we are not worthy for anything else. Maybe. Yes, इवन डेमिगॉड वर्शिप के लिए भी हम लोग ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है। Yes, correct. So because they know that we cannot do so many things, just
chant holy name, that should be enough. Yes. Okay. That's great, Prabhuji. ठीक है, तो अच्छा, हमारा ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। ये 8वां चैप्टर समाप्त हुआ। Hmm. अभी परसों 9th चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, थ्रू महाराज रिटर्न्स होम। Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. थैंक यू हरे Hare कृष्ण। Krishna. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, महामुनि व्यास की जय, His Grace श्रीमद् Chaitanya भागवतम की Prabhu जय। की जय. Hare Prabhuji, Krishna. Dhanavad Pranam. Thank Dandavat you, Pranam, Prabhuji. Prabhuji. प्रणाम। I will end the session now, Prabhuji. I will end the session. Hare Krishna. थैंक यू